सीधे राज्यसभा का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। सभापति इस समय सदन से बातचीत कर रहे हैं। Forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it, withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for a year. I find it difficult to understand as to why the subject was listed in the list of business for yesterday would have prevented any member to raise any issue concerning the farm sector, including 3 farm bills that some members were keen to raise in the House and even demanding their withdrawal. Yesterday was a golden opportunity for the concerned members to have gone on record with their positions on all issues relating to the right of the farmers. But it was not to the, please have the decency at least, as the chair is saying something, at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. The positions on all issues to the right of farmers, but it was not to be, as the sole intention seems to be, not to allow the House to function. Sir, 35 bills have been passed. Right at the start of the proceedings of the House yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. And then, what is worrisome, some members of the House have sought the sad moments of sacrilege in the House yesterday and posted it on the social media. While doing so, they only ended up showing the people to the extent which this August House can degenerate to the newfound competitiveness and aggressive disruption by some sectors. I was very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the House, I am sacred to visualize the implications and consequences of such competitive acts or sacrilege in our temples of democracy. I earnestly appeal to the collective conscience of this House to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies. If any failure to do would certainly amount to a setback to our parliamentary democracy, it make it irrelevant. I would like to remind all of you that we begin to celebrate 75 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst disruptor. The choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the House like this. I am adjourning the House to meet at 12 a.m. स्थगित कर दी गई है, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने बाकायदा कल की जो घटना थी उसका जिक्र किया और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है घटना। संसद में कल जो कुछ हुआ उससे वे दुखी हैं। सरकार को कोई भी विपक्ष का सदस्य मजबूर नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। क्या करना है या क्या नहीं करना है, इसके लिए विपक्ष मजबूर नहीं कर सकता, अपनी बात कह सकता है। लेकिन सदन स्थगित होने के बाद सदन के भीतर जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो जो वायरल हैं उनको देखकर दुख होता है। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अंकित गुप्ता हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, पहले बैठक हुई और उसके बाद सदन में जब जो भी कुछ हुआ कल उसके लिए गहरा दुख जताया गया वेंकैया नायडू की तरफ से। विकास, न सिर्फ दुख जताया गया बल्कि जो है नाराजगी भी जताई गई है, क्योंकि जो वेंकैया नायडू ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके की जानकारी सामने आई है, वो निश्चित तौर पर सदन की गरिमा को भी गिराने वाला है। क्योंकि सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी, महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है पिछले पूरे सत्र के दौरान चर्चा हो सकती थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके की जो है कल घटना घटी है, हालांकि कहा यह गया कि सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद हुआ, लेकिन फिर भी संसद भवन के अंदर ही वो सारी घटना घटी है, मोबाइल से वीडियो बनाए गए हैं, उन सारी चीजों को लेकर के वेंकैया नायडू ने
नाराजगी जताई है। लेकिन विकास, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि अमित शाह और उसके अलावा पीयूष गोयल समेत जो कई जो नेता है वो जो मिले थे वेंकैया नायडू से, और फिलहाल चर्चा इस चीज को लेकर के है कि जिन लोगों ने ये हरकत की थी या जिन लोगों ने भी सदन के अंदर, भले ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी, लेकिन फिर भी टेबल पर चढ़ करके या रूल बुक फेंकी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग की गई है सरकार की तरफ से। और काफी हद तक मुमकिन है कि वो कार्रवाई हो भी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि चर्चा ये भी हो रही है कि कल जो बिल लोकसभा से पास हुआ है ओबीसी वाला, वो बिल आज राज्यसभा में आ सकता है। लिहाजा सरकार की कोशिश ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर जो है वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको जो है हाउस से निकाला जाता है या कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उससे माहौल और ज्यादा खराब हो जाए, और ओबीसी बिल जो सरकार पास करवाने की जो है एक मंशा रख रही है कि आज वो पास करवाया जा सके। हालांकि अभी तक लिस्ट नहीं आई है, सप्लीमेंट्री लिस्ट, लेकिन कोशिश ये है कि अगर मुमकिन है कि आज उस बिल को लाया जाए दोपहर बाद तक, तो सरकार की कोशिश ये भी है कि शांतिपूर्ण माहौल में वो बिल भी पास करवाया जाए। तो ऐसे में अभी देखना अब ये दिलचस्प होगा कि हाउस की कार्रवाई यानी कि राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई होगी जिन लोगों की कल तस्वीरें बाहर आई थी सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद? ये तो एक बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों की तस्वीरें बाहर आई थी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, क्या उस पर सदन कार्रवाई करेगा? फिलहाल सरकार ने संभवतया जो ओबीसी संशोधन बिल है उसको देखते हुए अभी फिलहाल कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है सदन में, लेकिन ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि सदन उस पूरे मामले का किस तरह से संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई होती है। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।